سب سے پہلے میں ایک ضروری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے مجھے مدینہ منورہ سے یہ خبر ملی کہ کچھ لوگوں نے میرے نام سے منسوب کر کے کوئی بیان انٹرنیٹ پر ڈالا ہے. وہ میرے نام سے منسوب ہے یا اس میں میرا نام غیر ضروری طور پر، غیر ذمہ دارانہ طور پر دیا گیا ہے، اور اس طور پر اس بیان میں جو کچھ مندرج ہوا وہ ایک طرح سے مجھ سے منسوب ہو جاتا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس قسم کا کوئی بیان انٹرنیٹ پر ڈالا جس میں یہ ہے کہ الیاس قادری کو پادری لکھا گیا اور پادری کہا گیا اور پاتی کہا گیا. جنہوں نے یہ بیان دیا ہے وہ اس کے لیے خود ذمہ دار ہیں، اور مجھے اس سلسلے میں بڑا افسوس ہے کہ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات میں لوگ میرا نام شامل کر لیتے ہیں اور میرا نام ذکر کر دیتے ہیں. میں اس قسم کے اس بیان سے اور اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے بالکل اپنی دستبرداری ظاہر کرتا ہوں، اور میں اس حرکت سے خوش نہیں ہوں. اور ابھی تک میرے نزدیک الیاس قادری پر اور دوسری جماعت جو ممبئی میں ہے اس کے بانی پر، اس کے امیر پر میرے نزدیک کوئی ایسا حکم ثابت نہیں ہے، کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ان کو پادری یا اس قسم کے الفاظ سے یاد کیا جائے. میں نے اسے رضی میں بھی یہ سنا تھا کہ ان دونوں جماعتوں کے کچھ لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ میں ان دونوں جماعتوں کے افراد کی یا ان دونوں جماعتوں کی تکفیر کرتا ہوں. میں نے اس سلسلے میں پہلے بھی برات ظاہر کی اور آج بھی برات اسے ظاہر کرتا ہوں. یہ بیان میرا محفوظ رکھا جائے، اس کو عام کیا جائے. دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی دونوں کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تنظیموں کو سنیوں کی مثالی تنظیم بنا دے. یہاں موجود بہت سارے لوگوں میں میں حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب محدث کبیر مقدس اللہ العالی سے ایک سوال کرتا ہوں جو کہ عوام میں بہت شدت کے ساتھ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ کیا کبھی حضور آپ نے یا حضرت تاج الشریعہ مقدس اللہ العالی نے دعوت اسلامی یا سنی دعوت اسلامی کے بارے میں یا ان کے مبلغین کے بارے میں کفر کا حکم نافذ کیا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صریح غلط اور تہمت ہے. اس طرح کی بات عرس رضوی کے موقع پر کسی نے مجھ سے کہی. 24 صفر المظفر کو رات میں جو جلسہ جامعۃ الرضا میں ہوتا ہے اس گراؤنڈ میں بہت طویل عریض رقبے میں مجمع پھیلا ہوا تھا.
میں نے وہاں پر اپنی تقریر کے دوران اس بات کی صراحتاً نفی کی کہ میری طرف اس طرح کی بات منسوخ کر کے کہی جاتی ہے، آج مجھے معلوم ہوا۔ میں نے نہ تو دعوت اسلامی اور نہ سنی دعوت اسلامی کو کبھی کافر کہا، نہ کافر کہنے کا کبھی کوئی تصور کیا۔ میں علامہ اظہری صاحب کے بارے میں بھی میں نے آج تک کبھی ان سے اس طرح کا کوئی جملہ یا اس کا ہم معنی جملہ نہیں سنا۔ پھر بھی میں اس پورے مجمع میں حضرت تاج الشریعہ علامہ اظہری صاحب مدد اللہ العالی سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے تو کبھی ان دعوتوں کو یا ان کے داعیوں کو کافر کہا نہیں۔ کیا آپ بھی اسی موقف پر ہیں یا نہیں؟ اور اگر آپ تکفیر کرتے ہیں تو میں اس کی وضاحت کے بعد رجوع کر لوں گا اپنے اس قول سے کہ ان کی تکفیر نہ کی جائے۔ فرمایا کہ علامہ ضیاء المصطفیٰ نے اس طرح مجھ سے سوال کیا، حاشا وکلا، میں نے کبھی نہ تو دعوت اسلامی کی تکفیر کی نہ سنی دعوت اسلامی کی، البتہ بس اتنا جانتا ہوں کہ انہی کی تبلیغ میں تعاون کی ضرورت ہے جو لوگ کے شریعت کے مطابق اصول تبلیغ کو اپناتے ہیں۔ واللہ تعالی علم بالصواب۔ جو کہ شرعاً خود مجھے مؤاخذے کے کٹہرے میں کھڑا کر دے۔ میں کسی سنی مسلمان کو بھی صلح کلی ماننے پر تیار نہیں ہوں۔ مسلک اعلی حضرت پر ہیں اور مسلک اعلی حضرت ہی صحیح اور سچا مذہب و مسلک ہے اور اسی پر نجات ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا مجھے الیاس قادری صاحب کی جماعت میں جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے مجھے کئی ایسی باتیں سنائیں جو کہ ہم اہل سنت نہیں کرتے۔ برائے کرم یہ بتائیں کہ کیا یہ لوگ صحیح؟ الیاس قادری صاحب کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، لہذا وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں، بالکل آپ جائیے اور گویا وہاں جانے کے بعد ان کے اجتماع سے فیض اٹھائیے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ انہوں نے بعض باتیں آپ سے ایسی کہیں کہ جو اہل سنت نہیں کرتے، وہ تفصیل اگر آپ بھیج دیں تب ہم یہ بتا سکیں گے اس میں کون سی بات جائز ہے، کون سی ناجائز ہے یا سب جائز ہیں۔ دعوت اسلامی سے متعلق علماء اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ کیا آپ کی ملاقات مولانا الیاس قادری صاحب سے ہوئی؟ دیکھیے، ہمارا موقف تو یہ ہے کہ یہ سنیوں کی جماعت ہے اور مولانا الیاس قادری صاحب کو میں کم سے کم آج سے 35 سال پہلے جانتا ہوں۔ تو اب آپ بتائیے ان کی کیا عمر ہوگی جب سے میں ان کو جانتا ہوں؟ تو اس لیے وہ ایک سنی صحیح العقیدہ ہیں، لہذا ان کی جو یہ دعوت اسلامی ہے یہ بہرحال یہاں تبلیغ کا کام کر رہی ہے اور علماء اہل سنت جو ہیں ان سے تعاون فرماتے ہیں۔ کہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں یا اہل سنت ہیں، تو دعوت اسلامی والے کیا اہل سنت سے ہٹ کر ہیں اور کیا اہل سنت والے دعوت اسلامی سے ہٹ کر ہیں؟ تو آپ ان بیکار باتوں میں اپنا وقت مت ضائع کیجیے۔ ایک سیدھی بات ہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہے؟ مسلمان ہوں، کیا مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہونا چاہیے۔ اور ایک ہی حضور علیہ السلام کا ارشاد آپ کے ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں سے یعنی بیکار باتوں سے پرہیز کرے۔ وہ تحریر میں نے اس لیے لکھ دی تاکہ سب لوگ اس پر دستخط کر لیں۔ آپ کا فی الحال جو معاملہ ہے وہ اختلاف ہی نہ رہنے پائے۔ آپ آپس میں لڑیں گے، ہم کو تکلیف ہوگی۔ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ دونوں گروپ کے لوگ سنی ہیں اور اس قدر آپ دلوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت تکلیف کی بات ہے۔ کل تک آپ کو معلوم ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے، میں نے غیر مقلدوں سے مناظرہ کیا ہے،
3 घंटे तक वो परेशान रहे और शिर्क की तारीफ नहीं कर पाए। हम तो अहले सुन्नत के अकीदे की हिफाजत के लिए दौड़ते। अब कोई हमको कहता है कि ये फितना करते हैं, ये करते वो करते, हमारी जातियात पर जो कुछ कहा गया हम सब उसको माफ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी जमात को जो अपने लोग हैं, जैसे दावत इस्लामी हो या सुन्नी दाखिल इस्लाम, इख्तिलाफ है बहुत सारी चीजों में, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई कयामत तक नहीं साबित कर सकता कि मैंने किसी को काफिर कहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कदर अपने आप को मुहतात रखता हूँ। हुजूर ताजुल शरिया क्या फरमाते जानते हैं कि हम इन तंजीमों को बाद इख्तिलाफात की बुनियाद पर मसलके आला हजरत का मुबल्लिग और नुमाइंदा नहीं मानते। नुमाइंदा होना अलग चीज है और किसी को काफिर कहना अलग चीज है, दोनों में फर्क होता है। जाहिर सी बात है कि हम आपको नुमाइंदा अपना नहीं मानते हैं, ये एक अलग बात हुई, लेकिन आपको मुसलमान ही नहीं मानते हैं, ये एक अलग बात हुई। लेकिन अभी इसी स्टेज पर ये सारी बातें कह करके और हमको मौरद इल्जाम ठहराया गया कि फला को काफिर कहा, फला को काफिर कहा, फितना। अल्लाह हम सब की ऐसे फितनों से हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, आप लोग मुसलमान सुन्नी सईद अकीदा सब लोग आला हजरत हुजूर सदर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। मैंने ठीक है इन्होंने डाल दिया है अकाबिर उलमा पर ताकि आप लोग आपस में न लड़ें, और जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ जो बातें मंसूब हैं जब वो काबिल एतराज हैं तो अब ऐसी सूरत में उनसे जुड़े रहने वाले लोग भी एतराज के भंवर में रहेंगे। हालांकि आपको नहीं होने चाहिए, आप सब तो हमारे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको अलग समझें? कोई सुन्नी रहनुमा अपनी कौम के लिए कभी नहीं चाहता कि वो इख्तिलाफ में पड़े। अब अगर कोई ये कहे आप में से कि ये मुफ्ती साहब आकर के इख्तिलाफ करके गए, बताइए बात झूठी होगी कि नहीं? हमको तो मालूम भी नहीं था कि आपका इलाका किधर है, हमको तो मालूम भी नहीं था कि कौन मौलाना अब्दुल सत्तार साहब है, कौन हाफिजुर रहमान साहब है। आपने हमको बुलाया, हम आपके मेहमान हैं। अब आप हमारी इज्जत करें या हमारी बेइज्जती करें या आपके इख्तियार में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए कि ऐसे हालात आते ही रहते हैं। लेकिन कल तक हमारी सारी एनर्जी गैरों पे खर्च होती थी। हमने वहाबी, देवबंदी, नजदी, बल्कि शिया के नौजवान लड़कों से पैसों मुबासा करके उनके अकीदे की इस्लाह की कोशिश की है। और आज मामला कुछ और है। तो बात यह है कि दीन में जब भी कहीं से फितना और बिगाड़ पैदा होगा तो उलमा की यह जिम्मेदारी है कि उस बिगाड़ को खत्म करें। तो अपने फिक्री और अमीर अहले सुन्नत के बख्शे हुए आदाब से मेरा इस्तेमाल किया। अमीर अहले सुन्नत उस जमाने में तारुफ नहीं है, यकीनन उनकी काविश, उनकी जिद्दोजहद और उनकी मसाई जमीला सारी दुनिया में अज़हम शम्स है। सुन्नत की बहारें वहाँ भी देखने को मिलती हैं। ये सब अमीर अहले सुन्नत की मसाई और या अल्लाह की खुसूसी निगाह करम और सैयदना इमाम हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुसूसी करामत में इसे कहता हूँ कि सरकार का नाम और सरकार का मिशन दुनिया में जिस शख्स ने सबसे ज्यादा उसका तारुफ कराया वो नामे नामी इसमें ग्रामी है, हजरत मुबल्लिग इस्लाम अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया। इस दौर में दावत इस्लामी के ज़रिए भी इस तरह जुलूस की शक्ल में प्रोग्राम करना और महाफिल करना, और साथ ही साथ मेन चीज़ जो मैंने इससे महसूस की कि इलियास कादरी साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह ताला ने हर जगह पे ये फरमाया कि अगर तर्जुमा कुरान पढ़ना है तो सिर्फ कंजुल ईमान पढ़ा जाए। ये सबसे बड़ी एक खिदमत है, इसलिए कि ज़ाहिर है आला हज़रत का तर्जुमा कुरान आप पढ़ेंगे तो अक़ायद अहले सुन्नत में मजबूती होगी। दीगर जो तराजिम है जहाँ गलत तर्जुमे वहाबियों ने, देवबंदियों ने, अहले हदीसों ने किया, उन सब का रद्द होगा और आला हज़रत के तर्जुमे के ज़रिए ईमान की मजबूती होगी। और साथ ही साथ जो फतावा रज़विया शरीफ की हमारे पाकिस्तान के उलमा ने 12 जिल्दों को 30 जिल्दों में किया, उसकी तराजिम वगैरह के साथ, तखरीज के साथ, उसको भी ऑनलाइन वर्शन में
सर्चेबल के हिसाब से ऑनलाइन वर्जन CD के जरिए सबसे पहले मेरे ख्याल से काम करने वाले दावत इस्लामी, और इसी तरह उनके वेबसाइट में dawat-e-islami.net में कई हजार किताबें आप पाएंगे, जिसमें आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैह की, हुज़ूर सदरुश शरिया की और दीगर हमारे अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत की किताबें, और कई ऐसी किताबें जो 400-500 साल पहले के बुजुर्गों की लिखी हुई थी, उसको भी तर्जुमा करके अपने वेबसाइट में अपलोड किया है। और अंग्रेजी में कई किताबें, कई मुल्क के कई ज़बान में, यहाँ तक कि केन्या की ज़बान में, श्रीलंका की ज़बान में भी कुछ किताबें इन्होंने शाया की है। तो इससे ये पता चलता है कि जहाँ जिस इलाके के लोगों को जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से माशाल्लाह ये लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं। एंड ऑफ द डे जो पैगाम जाता है वो हमारे इमाम आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम जलालुद्दीन सुयूती, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, सरकार गरीब नवाज, सरकार गौसे आज़म, खुलफ़ाए राशिदीन और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस, कुरान करीम की रोशनी में, आयत की रोशनी में वही पैगाम जाता है जो अहले सुन्नत की तरफ से होता है। तो इस हिसाब से एक बहुत बड़ा काम हज़रत मौलाना इलियास क़ादरी साहब हफ़िज़हुल्लाह के ज़रिए अल्लाह ताला ले रहा है। अल्लाह ताला इनके उम्र में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, मज़ीद इस तरह खिदमत की अल्लाह ताला इन्हें जज्बा अता फ़रमाए। और माशाअल्लाह एक वक्त ऐसा था कि इनके पास उलमा नहीं थे, यानी कि उलमा से मशवरा होना एक अलग बात है, लेकिन इनके मुरीदों में उलमा की कमी थी। लेकिन इस वक्त हज़ारों की तादाद में उलमा है और माशाअल्लाह हज़रत में आजिज़ी इतनी है, इसलिए कि मैंने खुद उनसे, मेरी बहुत पहले, कई साल पहले मेरी मुलाकात हुई है, यानी मैंने मुलाकात का शर्फ हासिल किया और कुछ देर गुफ्तगू का भी शर्फ हासिल किया। मसाइल में काफ़ी मतलब इनको उबूर है, बहार शरीयत के ताल्लुक से कोई भी मसला पूछते तो बहार शरीयत का हवाला देते, यानी इतना अजबर इनके जहन में। इसके बावजूद भी हमने ये आजिज़ी देखी कि ये कब कोई मसला बयान फरमाते हैं तो साथ में अपने मुरीद मुफ्ती साहब को भी रखते हैं और ये भी कहते हैं कि मुफ्ती साहब मजीद बातें आप बताइए, यानी खुद जानते भी माशाल्लाह है, लेकिन अपनी आजिज़ी का इस तरह इनके अंदर आजिज़ी, इनकी सारी ऐसी भरी हुई है कि ये मज़ीद तफसीलात और वजाहत के लिए इनके मुरीद के सामने बात रख देते हैं कि मुफ्ती साहब आप इसकी वजाहत फरमाए। और उलमा की बहुत बड़ी जमात, हुफ़ाज़ की बहुत बड़ी जमात, मुबल्लिगीन की बहुत बड़ी जमात इनके ज़रिए कायम हुई है। अल्लाह तबारक व तआला सबको सही मानों में अहले सुन्नत व जमात की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन उनके बारे में वही राय है जो तमाम उलमा अहले सुन्नत और तमाम अहले सुन्नत के लोगों की राय है कि हज़रत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली, जो एक मुत्तक़ी और परहेज़गार शख्स की हैसियत से और दीन की नशर व इशाअत के अंदर जो हिस्सा उनके हिस्से में आया, मैं समझता हूँ कि ये ख़ास फ़ज़ल इलाही पर हुआ बेशक। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने उनकी ज़ात से अपने महबूब की सुन्नतों का, सुभान अल्लाह, दीन का, सुभान अल्लाह, और सही अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ का, वाह। और जो लोग बहरा रवी की तरफ, बदमज़हबियत की तरफ या फ़िस्क़ व फ़ुजूर की तरफ गामज़न थे, तो उनकी इस्लाह के लिए, नज़रियाती इस्लाह के लिए, अखलाकी इस्लाह के लिए और मुआशरे को और समाज को अच्छे अफराद मुहैया करने में एक ऐसा इनकलाबी काम किया है कि मैं समझता हूँ कि ये इस दौर में उनका एक बहुत बड़ा खासा है। वाह। जिस तहरीक की बुनियाद उन्होंने दावत इस्लामी के नाम से रखी, यकीनन पूरी दुनिया में हमारा जाना होता है और वहाँ पर नौजवानों की, बुजुर्गों की एक वालेहाना तौर पर उनके साथ वाबस्तगी, और एक मुसलमान को तालीमी तौर पर जिन चीज़ों का जानना ज़रूरी है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, और फिर उसकी मुआशरती ज़िंदगी के अंदर हुकूक़ लिबास से मुतल्लिक़ जो हुकूक़ हैं, उसके रहन सहन के जो मामलात हैं, सुभान अल्लाह, और बिलख़ुसूस उसके नज़रिए की तरबियत, मैं समझता हूँ कि जो भी लोग मुझे मिले हैं तो मैंने ये देखा है कि वो तमाम तर चीज़ों पर आमिल मिले हैं। वाह वाह। और आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यकीनन ये क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ही का ये फैज़ान है और ये उनका इखलास है और उनकी एक अनथक मेहनत का ये नतीजा है। और मैं तो यही अर्ज़ करूँगा, मैं दुआगो हूँ और मैं अपने मजमू में भी, अपने अहबाब से भी, अपने मुरीदीन से भी, अपने मुतक़ीदीन से भी ये गोया के कहता रहता हूँ कि इनके लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको दराज़ी उम्र बिल खैर दे, अल्लाहुम्मा आमीन, और चरख़ सुन्नत पर इनको कायम रखे। आमीन। जितने हमारे अकाबिर हैं, बड़े हैं, हुजूर
ताज शरिया दामत बरकातुहुल आलिया की शख्सियत मुबारका, हुज़ूर अमीन मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया की शख्सियत मुबारका, इन तमाम मशाइख अहले सुन्नत का साया अल्लाह अहले सुन्नत पर रखे, और जो लोग इनके साथ मुस्तफीज़ हैं, जिससे मजबूती के साथ जो सिरात मुस्तकीम पर जमे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भी इस्तिकामत दे और इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा वाफिर करे, ताकि हर मुसलमान तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत, पैगाम और तालीम जो है वो आम हो, उसके नज़रिए की भी इस्लाह हो और उसके अखलाक की भी इस्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप सलामत रहे, आपकी टीम सलामत रहे, आमीन आमीन। दावत इस्लामी और अमीर अहले सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे, आमीन आमीन। उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन आमीन। और इसी तरीके से दीन और तबलीग का काम वो करते रहे, आमीन आमीन। और दावत इस्लामी के लोग भी उनसे उसी तरीके से मोहब्बत करते रहे जैसा वो उनसे मोहब्बत करते हैं, आमीन आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके दिलों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमें अता फरमाए, हमारी नस्लों में भी अता फरमाए, आमीन आमीन। और बड़ी खुशी की बात है, बड़ा अच्छा लगा, माशाल्लाह दिल बाग बाग हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत की याद ताज़ा हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो दावत इस्लामी जिसकी बुनियाद अमीर अहले सुन्नत अबुल बिलाल मौलाना इलियास कादरी रज़वी जियाई मददिल्लाहुल अली पाकिस्तान में है। मेरी जिंदगी अकेली जमात दावत इस्लामी और अकेली जात इलियास कादरी जो किसी एक शोबे के हाथी नहीं है, जिंदगी के हर शोबे में जाए। ये जामिया इतनी दिक्कत और मशक्कत से दावत इस्लामी ने बर्मिंघम में खोला है। ये जितनी मेहनत करके आपको इल्म दे रहे हैं, उस इल्म को गुरूर की मिक्सिंग से बचाना। सलीम सनी तो अलई का तवक्कल जामिया को पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को, निगरानी करने वालों को, ताउन करने वालों को मौला अपनी हिफ्ज़ व अमान में, अपने हिफ्ज़ व अमान में इस गया ने गैर में मदनी चराग रोशन करने की जो जद्दोजहद हो रही वाली को मौला उसे फरोज़ा आगे दावत इस्लामी आगे ही नशा लहराता रहे। और अमीर अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास कादरी रज़वी जियाई मददिल्लाहुल अली इल्म में उम्र में बरकत फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसके रब करम के शुक्र और सलाम करें। वालिद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के पास वो तशरीफ़ लाते थे इब्तिदा में, बल्कि उनके ये अल्फाज थे कि आपके वालिद साहब के ख़िताबात सुन के ही अक़ीदे सीखे हैं और सब कुछ। दुआएं उनको भी मिली होंगी, उन्होंने पहले क्योंकि वो अत्तार कहलाते हैं, खुशबू भी बांटते थे और लोगों के साथ नेकी करते थे। तो वालिद साहब क़िबला के पास आए थे, हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब के यहाँ महफ़िल हुई थी कि जी इस तरह बनाना है। हम ये कहते रहें कि जी उसकी दुकान से सौदा नहीं लेना और ख़ुद दुकान नहीं बनाए तो उला मोहल्ला उधर जाएगा। तो ये कहा था कि कोई हम भी ऐसा काम करें तबलीग के हवाले से और दावत के हवाले से। तो वालिद साहब क़िबला को कहा गया, वालिद साहब ने कहा मेरी अब उम्र इतनी नहीं, और फिर ये जिस तरह का काम है, और लोगों से भी कहा गया। इसका मंशूर लिखा था हज़रत मौलाना अरशदुल क़ादरी साहब, रईसुल क़लम ने, उन्होंने मंशूर लिखा था, उस पर दस्तखत सिर्फ वालिद साहब क़िबला के थे। तो ये आए, वालिद साहब ने इनको कहा मेरी मस्जिद में आ जाओ, वहाँ से काम शुरू करो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई और मरकज़ी जगह देखना चाहते हैं। काफ़ी अरसा ये देखते रहे, फिर बिलाखिर ख़ुद ही आए। तो वालिद साहब क़िबला ने वहीं से ख़ुद पहली रात इब्तिदा की थी। तो माशाअल्लाह उन्होंने बड़ा काम किया है। और चूँकि एक तंजीम शुरू हुई थी, शुरू में कुछ तंजीमी तौर पर
कुछ दूसरी बातें आहिस्ता आहिस्ता मंझते चले गए। आज माशाल्लाह पूरी दुनिया में काम हो रहा है, कितने लोगों को नमाजी बना दिया, कितने लोगों को अमामे पहना दिए, सुन्नतों से वाबस्ता कर दिया। तंजीमी तौर पर इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसकी तायीद पूरी तरह। मैं ये समझता हूँ कि दावत इस्लामी इसलिए दिन ब दिन तरक्की कर रही है कि ये जो भी काम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, ये इनकी खासियत है। और फिर जब ये काम करते हैं ना तो जाहिर सी बात है बहुत सारे एतराज़ भी करते हैं लोग, अगर तो वो जायज़ हो तो सुनते भी हैं और उसको दूर करने की भी कोशिश करते हैं शरीयत के मुताबिक, और अगर वैसे ही कोई फजूल बात करे तो उसका जवाब नहीं देते। वो कहते हैं हमारा काम तुम्हें जवाब देगा, वह हम ज़बान से जवाब नहीं देंगे। ये दावत इस्लामी की खासियत है, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और काम से जवाब देते हैं। और तीसरी बात, अमीर अहले सुन्नत ने जो एक दीन के माहौल के मुताबिक ये नेटवर्क तरतीब दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कमाल कमाल और कमाल है। और इसके अंदर जितने भी अराकीन शूरा हैं, काम करने वाले निगरान हैं और नीचे सतह पर काम करने वाले वर्कर हैं, वो सारे अल्लाह की रज़ा के लिए बड़ी तरतीब के साथ काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब काम करने वालों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। दावत इस्लामी ने मुल्क की सतह पर भी काम किया, पूरी दुनियावी सतह पर भी, पूरा यानी ऑल वर्ल्ड जिसको कहते हैं, इस पर भी काम किया, और फिर हमारे इलाकाई सतह पर भी काम किया, मसलकी सतह पर भी काम किया, और जिस मैदान में कदम रखा अल्लाह ने दावत इस्लामी को तरक्की और उरूज अता फरमाया। तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, ये तंजीम आपकी अपनी तंजीम है, ये आशिकाने रसूल की तंजीम है, इसलिए दावत इस्लामी पूरी दुनिया में कामयाब है और काम कर रही है। अल्लाह ताला इनको मजीद काम करने की तौफीक अता फरमाए। और किस जज्बे से काम किया, मसाजिद बन रही हैं, मदारिस बन रहे हैं, उलमा तैयार हो रहे हैं, मुफ्ती तैयार हो रहे हैं, मुबल्लिग तैयार हो रहे हैं। और फिर जब कभी मुल्क में कोई आफत आ जाए, थैलीसीमिया के बच्चों को खून दिया जा रहा है, जे गरीब लोग हैं उनके घरों में राशन पहुंचाया जा रहा है, बिलखुसूस सादात किराम, उनके साथ मोहब्बत का इजहार उनके घर में चल के किया जाता है। और इसी तरह जो लोग दुनिया के मुआमलात में भटके हुए हैं, इनको सुन्नत मुस्तफ़ा सिखाई जा रही है, इनका अकीदा दुरुस्त किया जा रहा है, और इनको नबी पाक अलैहिस्सलाम की चौखट पर बिठाया जा रहा है। ये इतना काम कौन कर रहा है? ये आपकी और मेरी दावत इस्लामी कर रही है। और काश के हमारे खतीब 50 साल से जो हम सिर्फ करामत 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 की लट लगा रहे हैं, इन 50 सालों में हमने करामत की बजाय इन वलियों की दीन की इस्तिकामत को बयान किया होता तो ये हाल ना होता हमारा। क्या बात है जी, क्या बात। ये तो अल्लाह ताला भला करे अमीर आले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहू, खुदा की कसम मेरे गौस पाक का नायब है, गौसुल आजम के नायब हैं, और वो अजीम अल्लाह का वली जिसकी एक करामत नहीं है। मदनी चैनल देखो तो अलग करामत है, मदारिसुल मदीना देखो अलग करामत है, तालीम बालगा एक अलग करामत है, और इतना बड़ा तालीमी नेटवर्क एक अलग करामत है, फैजान मदीना की भरमार एक अलग करामत है, और हर शहर के अंदर दारुल इफ्ता एक अलग करामत है। उस अल्लाह के वली ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि गौस पाक की तालीमात क्या है, दाता अली हजवेरी पाक की तालीमात क्या है। अल्लाह अकबर। जिसके करोड़ों मुरीद हों, जिसने लाखों उलमा बना दियों, लाखों हुफाज बना दियों जी, फिर भी वो कहते हैं मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हजरत किबला अलहाज शेख मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब दामत फयूज़हुम के बारे में कुछ कहें। हमारा ज़माना ना मीडिया का ज़माना है, इस ज़माने में ना किसी के बारे में कुछ कहना या किसी के बारे में कुछ ना कहना, इसको मुख्तलिफ रंग दिए जाते हैं, मुख्तलिफ अंदाज के साथ इसको पेश किया जाता है। मैं उनके बारे में इतनी बात, सिर्फ इतनी बात, मैं बड़ा मोहतात आदमी हूँ, मैं कोई बात इस अंदाज में नहीं करता कि कोई शख्स कहे कि कुछ लोगों की हमदर्दी लेने के लिए बात कर रहे हैं। मैं जिन लोगों की दिल और रूह से इज्जत करता हूँ उनमें एक मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी कल भी, और मैं उन्हें इस दौर में जिन लोगों ने बड़ा एहसान किया है ना उम्मत के साथ, उन लोगों में एक आदमी मैं उनको जानता हूँ। लेकिन इसका ये माना बिल्कुल नहीं है कि मेरे को तारीफ करने से कोई बुजुर्ग बड़ा हो जाएगा।
मेरी तारीफ करने से उन्होंने काम किया है और बड़ी मेहनत के साथ किया है और बड़ी जद्दोजहद के साथ किया है। और उनके अकायद, उनके नज़रियात वही नज़रियात हैं जो 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा के नज़रियात हैं, और मजबूत अफकार और नज़रियात की मालिक वो किसी शख्स के तरीक़ेकार से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर किसी का अकीदा ठीक हो, अमल मजबूत हो और तकवे की दौलत अल्लाह ने दी हो तो फिर इसे सलूट ही करना चाहिए। यही उसका बनता है। अल्लाह उन्हें सेहत वाला, और मेरे साथ तो उनकी बड़ी मोहब्बत है। मैं कुछ दिन पहले ज़रा लील हो गया था, तो वो मक्का शरीफ में थे। जाने के ज़रिए से कुछ दोस्त आए तो उन तक पैगाम पहुंचा, तो वहाँ से उन्होंने मेरे लिए बड़ी दुआएं कराई, बड़ी मेरे साथ उन्होंने मोहब्बत का जो है वो रवैया रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं कह चुका हूँ कि जिन लोगों को मैं कल्ब से चाहता हूँ और निजी महफिलों में जिनकी तारीफ़ करता हूँ, उनमें बड़ा नाम हजरत शेख का है। अल्लाह उन्हें बुलंदियाँ अता फरमाए। देखें, एक बात बताऊँ मैं आपको, बड़ा ही जलील कमीना इंसान होगा वो जो अपने मोहसिन को भूल जाए। अल्लाह अल्लाह। मैं अक्सर और बारहा और कई महाफिल के अंदर मैंने ये बाकायदा ऐलान किया है मदनी माहौल का ज़िन देते हुए कि मुझ में भी जो रंग है, वाह, ये जो रंग नज़र आ रहा है, जो एक ज़ाहरी हुलिया जिसे कह लीजिए, तो ये सब भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी माहौल की बरकत है। सुभान अल्लाह। और मैंने बहुत करीब से जो है क़िबला अमीर सुन्नत को देखा हुआ, उनके साथ करीब, बहुत ज़्यादा करीब रह के वक्त गुजारा है। वाह। और बड़ी मोहब्बतें हैं, शफ़क़तें हैं, और आज भी बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, ऐसी बात नहीं। तो आज भी वो मुझसे बड़ा मोहब्बत करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। और मैं अपने मोहसिन का जो है वो एहसान नहीं भूल सकता कि इन्होंने मुझ पर तरबियत की है, मेरी तरबियत की है, बहुत की है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इन्हीं का जो है वो तरबियत का असर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम परेशान थे, कौन है इन तबलीगी जमात के लोगों का मुकाबला करे? हमारे अपने लोगों के ईमान खराब होते चले जा रहे हैं। उस जमाने में दावत इस्लामी के इन मुबल्लिगीन ने ऐलान किया था, ए उलमाए अहले सुन्नत, इस काम के लिए तो हम काफी हैं। आप मदरसे में पढ़ाइए, आप दारुल इफ्ता में बैठ के फतवे दीजिए, आप जाके किताबें तैयार कीजिए, ये बहुत मुख्तसर सा काम है, इस काम के लिए तो हम तैयार हैं। जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको याद कर लेंगे। आप देख लो अल्हम्दुलिल्लाह आज दावत इस्लामी का प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है। 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा दावत इस्लामी को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले लोग, 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा, 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा दावत इस्लामी के सोशल मीडिया का जो पेज है उस पर 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करने वाले हैं। और जो लाइव दावत इस्लामी को फॉलो करते हैं वो अलग है। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तहरीक है जिसने मदरसतुल मदीना के ज़ेरे एहतमाम 4650 इदारे कायम फरमाए। 4650 इदारे कायम फरमाए मदरसतुल मदीना के ज़ेरे एहतमाम। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह वो तहरीक है जिसने जामिअतुल मदीना के तहत 1200 इदारे कायम फरमाए। मस्जिद में इमामत करते थे अमीर अहले सुन्नत के ज़माने ने यह सोचा था कि एक मस्जिद का इमाम ऐसा इमाम बनेगा कि पूरी दुनिया की इमामत करता हुआ नजर आएगा। किसने सोचा था ये कि एक मस्जिद नूर से निकलने वाला इमाम अपने जमाने का ऐसा मर्द कलंदर हो जाएगा कि जिसके नाम पर करोड़ों की तादाद में लोग जान देने वाले होंगे। किसने सोचा था कि मस्जिद नूर से निकलने वाला एक बयान आने वाले जमाने में दावत इस्लामी के नेटवर्क पर हर हफ्ते में 700 बयान होते हुए नजर आएंगे। किसने सोचा था ये? दावत इस्लामी के मीठे मीठे मदनी माहौल के साथ बस्ता हो जाए। अकीदे का भी मीठा माशाल्लाह और अमल का भी मीठा 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 मदनी माहौल, सही इश्क मुस्तफ़ा और फैज़ान आला की खैरात इंशाल्लाह मिलेगी। सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी के मीठे मीठे मदनी माहौल के साथ बस्ता हो जाए।
अकीदे का भी मीठा माशाल्लाह और अमल का भी मीठा 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 मदनी माहौल, सही इश्क मुस्तफ़ा और फैज़ान आला की खैरात इंशाल्लाह मिलेगी। दावत इस्लामी के काम से मैं वैसे तो बहुत पहले से ही मुतारिफ़ हूँ, लेकिन अभी मज़ीद नए जो जदीद काम और जो जदीद आलात के ज़रिए दावत इस्लामी जो सुन्नियत का काम कर रही है उससे भी मैं आगाह हुआ। जहाँ तक दावत इस्लामी के तबलीगी मिशन और उसके काम का ताल्लुक़ है, बहुत हद तक मैं इसके काम से मुतमईन हूँ। ख़ुसूसन जो अकाबरीन की तसानीफ़ के ताल्लुक़ से दावत इस्लामी इस वक्त काम कर रही है, अपनी खिदमत पेश कर रही है, और ख़ुसूसन इसमें हमारे बुज़ुर्गों की जो कदीम किताब है उसको जो तखारी के साथ पेश करने का एक सिलसिला दावत इस्लामी ने शुरू किया है। ये एक बहुत बेहतरीन सिलसिला है जो अहले सुन्नत वल जमात के लिए इंतहाई मुफीद और कारआमद साबित होगा इंशाअल्लाह। साथ ही जो दर्स निज़ामी और दिगर शुबात जो अभी दावत इस्लामी चला रही है, यकीनन ये अहले सुन्नत वल जमात और मसलक आल हदरत को मजबूत करने वाले काम है। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु वाली की ज़ात का ताल्लुक़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बहुत कम अरसे में दुनिया सुन्नियत में एक इनकलाब बर्पा किया है। ख़ुसूसियत जो नौजवान बेरा रवी के शिकार है उनको सुन्नतों के पैकर और साँचे में ढालना ये एक बहुत बड़ा अजीम कारनामा है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, उनके हौसलों में जो है बुलंदियाँ अता फरमाए। जिसे दुनिया इलियास कादरी कहती है वो चलती फिरती रसूलुल्लाह के इश्क की तस्वीर है। ऊंचे बोलो सुभान अल्लाह। तुमने क्या किया सारी जिंदगी? तुमने अहले सुन्नत के अंदर इनकलाब नहीं लाया, तुमने अहले सुन्नत के अंदर फसाद लाया। दावत इस्लामी उसके अमीर पर भोगते हो, तुम्हारी वजह क्या है? वजह यह है कि इलियास कादरी नाम लेता है आला हज़रत का, इलियास कादरी नाम लेता है आला हज़रत का, और आला हज़रत ने इनकी रगड़म पट्टी सही की है। आला हज़रत ने राफजियों को वो चुन चुन के रगड़म पट्टी की है, गंगा जमुना के अंदर गोते दे दे के मसला लिखा, फिर गोता दिया निकाला। हाँ बताओ, समझ आई है? इलियास कादरी का कसूर सिर्फ यह है कि वो अपने नौजवानों को अहमद रजा का आशिक बनाता चला जा रहा है। इस वजह से तुम्हें इलियास कादरी बाता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, दावत इस्लामी का काम तो किसी से छुपा नहीं है, और जितनी भी शोबाजात हैं इनमें काम हो रहा है, तो हम तो देख देख के खुश होते हैं। तो हम देखने नहीं आते, हम तो बरकत लेने आते हैं कि जो वहाँ अमीर आले सुन्नत का फैज़ जो है माशाल्लाह छमाछम बरस रहा है, तो हम तो उसमें से अपना हिस्सा लेने आते हैं कि हमने क्या देखना है, हमने क्या। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो तो मची है। हम तो देखने आते हैं कि चलो देख के तो हमारे अंदर भी मज़ीद शौक़ बढ़े। माशाल्लाह देखो कितना काम हो रहा है, नौजवान बच्चे, 12 माह के मदनी काफ़िले, छोटी बात है जी। जवानी में मैं देख के हैरान रह गया बच्चों। इस पुरफितन दौर के अंदर अहले सुन्नत में अगर किसी काम की हाजत थी तो वो यही थी कि तबलीगी जमात कोई होनी चाहिए जो घर घर जाकर दीन का पैगाम आम करे, मुसलमानों को उनके अहकामात से आगाह करे, बुराइयों से रोके, नेकियों की तरफ गामजन करे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ये कमी इस हस्ती के ज़रिए कि जिसका आज हम जिक्र खैर कर रहे हैं, शेख तरीक़त, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, रेहाने मिल्लत, परवाने शमए रिसालत, आकाए नेमत, आशिके माह रिसालत, मुहसिन अहले सुन्नत, आलिम शरीयत, वाक़िफ़ असरार हकीकत, मखज़न इल्म हिकमत, पैकर रुश्द व हिदायत, आरिफ शरीयत व तरीक़त, गव्वास बहर हकीकत व मारिफत, वारिसुल अंबिया वल मुरसलीन, ज़ुब्दतुल आरिफीन व सालिकीन, मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा, आशिक़ आला हज़रत, नाइब आला हज़रत, नाइब गौसुल वरा, मुजद्दिद मेअत हाज़िरा, गौसुल वक्त, अमीर अहले सुन्नत अबू बिलाल मेरी मुराद, मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया हैं। इलियास कादरी साहब ने
جو इस उम्मत मुस्लिमा पर दावत इस्लामी के जरिए एहसान किया है, ये एहसान अजीम मदनी चैनल के जरिए भी है, ये एहसान अजीम जामियात के जरिए, मदारिस के जरिए और तबलीगी जमात की सूरत में जो आपने इस उम्मत पर किया है। मैं कहता हूँ अगर थोड़ी देर के लिए ये तसव्वुर कर लिया जाए कि दावत इस्लामी नहीं है तो सिवाय अंधेरे के कुछ नजर ना आए। इस मर्द कलंदर ने दावत इस्लामी के जरिए जो इस उम्मत पर एहसान किया, मैं कहता हूँ काम को सलाम होता है। और ये सैयदजादा जो है इलियास कादरी साहब को दोनों हाथों से सलाम पेश करता है कि अल्लाह अकबर, आपने जो इस उम्मत मुस्लिमा पर एहसान किया है, मैं कहता हूँ खुदा की कसम ये उम्मत जो है रहती दुनिया तक आपका ये एहसान उतार नहीं सकेगी। और अल्लाह तबारक व तआला आपका साया उम्मत मुस्लिमा पर तादेर कायम व दाइम फरमाए और आपके फ्यूज़ व बरक़ात से हमें भी मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे सुन्नी जन्नती भाइयों, अल्लाह व रसूल के लिए ईमान के मामले में कोताही न करें। ईमान की हिफाजत बहुत बड़ी बात है। जिस तरह काफिर को काफिर न जानना खुद काफिर होना है, इसी तरह बिला दलील शरई, बिला बुनियाद शरई किसी सुन्नी मुसलमान को गुमराह या काफिर कहना खुद गुमराह या काफिर होना है। हुजूर ताजुस्सरिया ने अपनी ज़ुबान अक़दस से आज तक खुले लफ्ज़ों में ये बात नहीं फरमाई कि दावत इस्लामी या सुन्नी दावत इस्लामी गुमराह है। हुजूर ताजुस्सरिया के बाद जिनका मकाम व मर्तबा है, हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला व काबा हज़रत ने भी कभी ये बात नहीं फरमाई। मुंबई के सरजमीन पर अताए हुजूर ताजुस्सरिया हुजूर मुफ्ती महमूद अख्तर और उस्ताजुल उलमा हुजूर मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब क़िबला, ये सब साहिबान इल्म व फ़हम हैं, बड़े बड़े उलमा है। इनका शुमार ऊंची हस्तियों में होता है। जब इन लोगों ने नहीं कहा तो चर्ब ज़ुबान मुकर्रिर, रट्टू मुकर्रिर, सड़क छाप मुकर्रिर जो गली कूचों में तकरीर करते, जिनका मिशन ही दिन रात सिर्फ दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी करना है, वहाबियों को, देवबंदियों को, बदमज़हबों को छोड़ दिया। बेचारे लोग खर्च करके प्रोग्राम कराते हैं और ये मुकर्रिर साहिबान बजाय उस तकरीर में अल्लाह उसके रसूल की बातें बताने के, बजाय लोगों को इल्म व अमल की दावत देने के, बजाय लोगों को नमाजों की तरफ, दीन की तरफ राग़िब करने के, बजाय इसके कि वहाबी देवबंदियों का रद्द करे, सिर्फ दिन रात DISDI, इससे हजारों पिलपिले जो बेचारे सुन्नियत की तरफ आना चाहते हैं, तो ये देखकर अमीर दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब जो है, उन्होंने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर 22 मसाजिद बनाने का ऐलान किया। इस पर कुछ लोगों को रंज हुआ और उन्होंने बातें बताना शुरू कर दी और उनसे झगड़े शुरू कर दिए। और फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान सोबत को नहीं देख रहे कि आखिर वो सहाबी किस पैगंबर के हैं, और उनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम अपनी ज़ुबान से कितनी बार इस अंदाज में लिया कि मुआविया को बुलाओ कि आए और हदीस लिखे, आए और आयत लिखे, जिनके हाथ पे बैत करने वाले इमाम हसन जैसे हो। कितना ऊंचा मर्तबा है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कितना ऊंचा है। आलत कहते हैं बेशुमार। मुआविया भी हमारे सरदार। हज़रत अमीर मुआविया पे जो तान करता है वो फाजिर है। इन जुमलों में खारजी का भी रद्द है, नासबी का भी रद्द है, राफजी का भी रद्द है। ये है अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। इस बात के कायल हैं अमीर दावत इस्लामी, यानी वो बरहक हैं जो उन्होंने बयान किया। हम भी शान अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मगर हमारा मिशन ये नहीं है कि हज़रत अमीर मुआविया को हज़रत मौला अली से आगे बढ़ाया जाए। आगे बढ़ाना तो दरकिनार, हम तो बराबर भी शान में लाने वाले नहीं हैं। दावत इस्लामी ये जो अमीर है हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब, ये मेरे वालिद मोहतरम फरमाया करते थे कि 10 साल इन्होंने मेरे साथ गुजारे और मैंने अपनी आंखों से देखा कि अफून मस्जिद का जो गुजरा, हाजी साहब अगर मौजूद होते तो मैं बताता कि हाजी साहब भी तशरीफ लाते। इलियास कादरी साहब की सुबह से शाम तक मेरे वालिद साहब के सामने मौजूद होते।
میرے والد صاحب اپنی مسند پر موجود ہوتے 10 سال گزارے. اچھا پہلے جو رنگ چلتا تھا امام شریف کا علماء جو پہنتے تھے وہ براؤن کلر ہی تھے. میرے والد محترم کا امامہ براؤن, گلے میں جو رومال وہ براؤن, الیاس قادری صاحب کا امامہ شریف براؤن, رومال جو ہے وہ براؤن. اب ہم چھوٹے, وہ نیچے کرکٹ میں لگے ہوئے, کھیل میں لگے ہوئے, ادھر سے حضرت صاحب آ رہے, امیر اہل سنت ادھر سے آ رہے, تو میں اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا بھائی اب جانے دو میرے والد صاحب آ رہے. چھپ جاتا تھا, بعد میں پتا چلتا تھا یہ تو الیاس قادری صاحب ہے. تو الحمدللہ دونوں میں بڑا پیار رہا, بڑی محبت رہی, اور آپ دیکھیں اللہ نے دونوں کو نہ ختم ہونے والی شہرت عطا فرمائی. اہل سنت پر بہت بڑا احسان کرنے والے حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری. آج ان سب ڈبہ پیروں کو اور ان جوتے کے ڈبوں کو جو امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی پر بھونکتے ہیں, ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, ہمارا تعلق سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ سے ہے, اور ہمارا تعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے ایسا تعلق ہے کہ میں نے اپنے استاد گرامی شیخ العزیز ابو الفتح نصر اللہ خان قادری صاحب کو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے گھر کے بچے کو بھی وہ پیٹ نہیں کرتے تھے. ہم نے بھی اعلیٰ حضرت کے گھر کا یہ ادب سیکھا ہے, اور اعلیٰ حضرت کے گھر کا یہ ادب اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو اس شخصیت کو الیاس قادری امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی سن لے, وہ آدمی جس نے امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی پر زبان تام دراز کی, ہم اس کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے دم میں دم ہے. کیوں کہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کا قصور یہی ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ میرا سب کچھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. اور جو اعلیٰ حضرت امام رضا خان کو اپنا آئیڈیل بنا لے گا تو پھر وہ یہ ڈبہ پیروں سے تو بچ جائے گا. مسئلہ یہ ہے, نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو, کیونکہ جس کا آئیڈیل اعلیٰ حضرت ہوں گے نا, کیونکہ اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بنانے کا مسئلہ یہ ہے, مطلب یہ کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہے, تو جب اعلیٰ حضرت کو پڑھے گا تو پھر اس کو پتہ لگے گا او ہو میں کہا تھا, یہ پیر صاحب مجھے کہاں لے کے جا رہے تھے, ادھر تو معاملہ کچھ اور ہے. اور وہ امیر دعوت اسلامی کو مانتے ہیں تو اس وجہ سے مانتے ہیں, انہوں نے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کیا ہے. اور سن لو, اگر چھوٹا سا بچہ بھی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کرے گا تو ہم اس کے پیچھے چلیں گے. واخر دعوانا